والصلاة والسلام على رسوله الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. محترم و معزز حاضرین سامعین مناظرین کرام، بفضل تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک مرتبہ پھر سے اس پاک بزم اور مجلس کے اندر جمع اکٹھا فرمایا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام یعنی قرآن مجید کے متعلق اور اس کی آیات ترجمہ و تفسیر کے متعلق گفت و شنید کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 سے جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور آپ لوگوں سے خدمت لے لیں وہاں تک انشاءاللہ تعالیٰ بیان کیا جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، حق بات سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 133 میں اللہ نے کہا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان ہے دوڑو، اعدت للمتقین جو متقیوں کے لیے تیار کی ہے۔ آیت کے اندر جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اس میں ایک لفظ ہے سارعوا، جس کا معنی ہوتا ہے دوڑنا۔ جیسے ہم پیدل چلتے ہیں، آہستہ بھی چلتے ہیں، تیز بھی چلتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ ایک دم سے دوڑ جاتے ہیں۔ تو جو لفظ کا چناؤ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے، کس چیز کے لیے دوڑنے کا حکم ہو رہا ہے اور کیوں ہم لوگ دوڑے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ الی مغفرۃ من ربکم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ مغفرت بخشش، اصل میں بحیثیت ایک انسان ہونے کے خطا سرزد ہونا یہ ممکن ہے، کیونکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہماری فطرت میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ جیسے ہماری فطرت میں بھوک کا لگنا شامل ہے، نیند کا آنا شامل ہے۔ اگر ہم ٹھان لے کے ہم کو نیند نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے۔ ہم پوری کوشش کر لیں کہ بھوک نہ لگے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے حد تک امکان ہر مسلمان کوشش کرتا ہے کہ اسے گناہ نہ ہو، لیکن یہ ایک فطری چیز ہے کہ گناہ کی طرف مائل ہو جانا انسان کی فطرت میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا کہ عورتوں کے فتنوں سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس میں جو عذاب آیا اس میں سب سے بڑا فتنہ عورت ہے۔ یہ بنی اسرائیل جو قوم تھی جو عذاب کی مستحق تھی، جس پر اللہ کا عذاب آیا، اس میں جو فتنہ سب سے بڑا فتنہ تھا وہ کیا تھا؟ عورت کا فتنہ۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہا؟ کیونکہ انسان کے اندر ایک کشش ہوتی ہے جو مرد کے اندر بھی ہوتی ہے اور عورت کے اندر ہے کہ نہیں؟ اور عام طور پر شیطان کن لوگوں پر زیادہ محنت کرتا ہے؟ ان لوگوں پر جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، ان پر محنت کرنے کی کیا ضرورت؟ آٹومیٹک تو وہ گمراہ ہیں۔ محنت اس پر کرنا ہے کہ جو صراط مستقیم پر گامزن ہے تو ان کو اس دنیا کی رنگت چاک چوبند کی طرف مائل کیا ہے نا۔
इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। अब ऐसी सूरत में जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम अल्लाह से इस्तिग़फ़ार तलब करो, मैं तुम में रोजाना अल्लाह से 100 मरतबा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अब यहाँ पे आपके ज़हन में एक बात आएगी कि हमारे नबी तो मासूम ख़ता थे ना, आपके ऊपर तो कोई गुनाह नहीं था, तो फिर आप मग़फ़िरत क्यों चाहते थे, इस्तिग़फ़ार क्यों करते थे? ये इस बात का सबूत है कि हमारे अंदर, हम लोगों के अंदर जितनी भी नमाजें आ जाए, रोज़े आ जाए, इबादत में कोई कमी या कोताही ना हो, खैर और भलाई के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हो, नेकी के काम में पेश रह रहे हो, फिर भी इसके बावजूद हमें अपने आप को गुनहगार नहीं, ये एहसास तो खत्म नहीं होने देना है कि नहीं अब हम गुनाह करते तो गुनहगार कैसे होंगे। क्योंकि मेरे भाई, जब ये एहसास हमारे अंदर से खत्म हो जाएगा कि हम गुनहगार नहीं हैं, तो एक चीज ऑटोमेटिक पैदा हो जाएगी, तो कहते तकब्बुर, तो घमंड, किब्र कहते हैं, ये ऑटोमेटिक पैदा हो, क्योंकि एक चीज अपने दिल से निकालती है कि हम गुनहगार है ही नहीं। क्योंकि होता क्या है आमतौर पर कि सिर्फ पैसे का घमंड लोगों को नहीं होता है। आज के जमाने में एक ये भी हकीकत है कि बहुत सारे हमारे भाइयों को इबादत का घमंड हो गया है, और इस कदर सर पे चढ़ा हुआ इबादत का घमंड कि जो इबादत वो कर रहे हैं उसके मुताल्लिक औरों को बिल्कुल नीचा और गिरा वो समझ रहे हैं। एक भाई हमारा नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, राह रात से भटके हुआ है, तो ये हम लोगों की दायित्व और जिम्मेदारी है कि हम उसको राह रात पर लाएं, ना कि उसको ये तंज कर दे कि तुम्हारी क्या औकात, तुम्हारी क्या हैसियत, तुम्हारा क्या ये क्या वो, कहकर उसको इस तरीके से शर्मिंदा कर दे कि वो दोबारा कभी वो चीज को करना ही नहीं चाहे। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशरिक या काफिर ने कहा कि तुम बुद्ध हुआ, क्या अल्लाह के रसूल ने तुम बुद्ध कुछ तो तुम क्या कहा, अल्लाह के नबी ने सोचे कि एक दाऊद तबलीग का मियार होता है। बहरहाल हम लोग गुनहगार तस्वुर करें, जितनी भी इबादत है, पता नहीं कि हमारी जुबान से कौन सा लफ्ज निकला हो, आप मेरे दोस्त को तकलीफ हो गई हो, लेकिन उसने कभी कहा नहीं, अल्फाज का बीमार होता है। तो अल्लाह ने कहा कि सारिउ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम, एक चीज तो ये कहा कि गुनहगार तस्वुर करते हुए तुम मगफरत की तरफ दौड़ो, यानी सुस्ती मत करो। ये नुक्ता याद रखें, मगफरत क्या है? बख्शिश है। जैसे क्या होता है हमारे माशरे में कि कोई नमाजी है और अचानक वो किसी वजह से नमाज छोड़ देता है, तो एक टाइमिंग फिक्स होती है कि जुमा से नमाज पढ़नी है ना, एक टाइमिंग फिक्स होती है। अगर वो फिक्स नहीं हो तो रमजान आ रहा है, एक महीने के बाद ही तो रमजान है, या शब बरात आया हुआ है, 2 हफ्ते के बाद रमजान है, तब रमजान की शुरू करें। अब मेरे भाई सोचिए कि अगर इस दरमियान मौत हो गई, जो इनको पता नहीं है, तो किसी को नहीं पता कब मरने वाले, इस दरमियान अगर मौत हो गई तो फिर तो मगफरत की जो चाहत थी वो तो एक टारगेट सेट हुआ, तो वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं पाए। तो अल्लाह कह रहा है कि सारे इला मगफिरतिन, तुम लोग दौड़ो। दौड़ने का मतलब ये है कि कल करे सो आज, आज करे सो अभी, मतलब आप ये टाइम ना रखना है, लग जाना है काम में। मिर रब्बिकुम, अपने रब की तरफ से। तो मगफिरत कहाँ से मिलेगी? अल्लाह की तरफ से। मगफिरत करने वाला कौन है? अल्लाह ताला। बख्शिश अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के अलावा किसी और से हम बख्शिश ना मांगे। ये दूसरा नुक्ता है कि पहले के मगफिरत की तरफ दौड़ना है, और दो ये कि ये मगफिरत अल्लाह की तरफ से मिलेगी। तो अल्लाह कब माफ करेगा? जब अल्लाह का काम करेगा तो ना माफ करेगा। फिर बोलने तो अल्लाह माफ कर देगा कि अल्लाह हमसे बहुत गुनाह हुए हैं, तू माफ कर दे, कम वो वही कर, समझा ना, कम वो वही कर। तो आप खुद सोचिए कि जो बात हम बोल रहे हैं अल्लाह कैसे माफ करेगा? माफी का मतलब ये हुआ कि जो काम हमने किया है गुनाह का, हम उस पर नादिम है, शर्मिंदा है, और शर्मिंदगी का मतलब ये हुआ कि दोबारा काम, शर्मिंदगी इसी को कहते हैं। फिर अल्लाह ने कहा कि वो जन्नती, और दौड़ो उस जन्नत की तरफ, दौड़ो, पकड़ लो, लपक लो, जो कहते हैं लपक लो। अर्ज़ समावात वल अर्ज़, जन्नत की चौड़ाई के बारे में अल्लाह बयान कर रहा है, वालेकुम सलाम, कि अब सोच ले कि जमीन से आसमान की कितनी हाइट है। सोचे एक एरोप्लेन करीब करीब 32-35 हज़ार फीट पर जब उड़ता है तो हमें तो कुछ नजर ही नहीं आता नीचे, है कि नहीं? अब वो चौड़ाई अल्लाह बयान कर रहा है कि जिस जन्नत को हमें और आपको हासिल करना है, अल्लाह हम सबको जन्नत नसीब करे, आमीन।
उस जन्नत की चौड़ाई अल्लाह बयान कर रहा है कि जमीन और आसमान की चौड़ाई, उस घर की चौड़ाई देखो कितनी है ना, इतना चौड़ा करके इतना लंबा बताते हैं। जन्नत की चौड़ाई बताई जा रही है, यानी इसका मतलब ये कि चलना शुरू करेंगे जन्नत में, एक कोने दूसरे कोने पर खत्म ही नहीं होगा, कई हजार साल लग जाएंगे पहुंचने में, जबकि एक्यूरेट अभी तक किसी को नहीं पता कि जमीन से आसमान की कितनी चौड़ाई है, किसी को नहीं पता। तो फ्लाइट जाती है या स्पेस पे जाते हैं, तो जहाँ पर चांद है, चांद से ऊपर भी तो आसमान है, यहाँ पर चांद उसके ऊपर भी तो आसमान है। और अल्लाह कह रहा है अर्ज़ समावात वल अर्ज़, उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान है। वइद्दत लिलमुत्तकीन, जन्नत मुसलमानों के लिए नहीं बनाई गई। गफलत में हम जीते हैं कि हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, कुरान पर ईमान है, नबी पर ईमान है। अल्लाह ने कहा कि ठीक है, लेकिन तकवा उसको सबसे ज्यादा संवारेगा। एक मुसलमान की सजावट क्या है? तकवा। हम कैसे अपने आप को अच्छा मुसलमान कह सकते हैं? जब हमारे अंदर तकवा हो। अल्लाह ने कहा उइद्दत लिलमुत्तकीन, ये जन्नत सिर्फ और सिर्फ मुत्तकियों के लिए। ये जन्नत जो है सिर्फ और सिर्फ मुत्तकियों के लिए, तकवा वालों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं है। ये गफलत से हमें निकलना होगा कि जो हम पैदाइशी तौर पर मुसलमान घराने में पैदा हो गए, पैदा हुए, अजान हो गई, मर जाएंगे, जनाजा की नमाज हो जाएगी, बस वगैरह वगैरह, और हम इस तरीके से हक अदा कर दिए, ऐसा नहीं। मुसलमान हुए, सहाबा पहले काफिर थे, मुशरिक थे, हिदायत मिली, मुसलमान हुए कि नहीं हुए? तो क्या उनके मुसलमान ईमान लाने से मामला खत्म हो गया? अब वहां से उनको नमाजों की पाबंदी करनी थी, वहां से जिहाद करना था, रसूल अकरम की बातों पर ईमान लाना था, अमल करना था, सदका खैरात करना था, तरह तरह की जो कुर्बानियां थी हमारे असलाफ ने दिया। और अल्लाह ने कहा कि इन्हीं चीजों को तकवा कहते हैं। तकवा यानी हर हाल में अल्लाह से डरना। तकवा को उसमें परहेजगारी भी बोलते हैं। परहेजगारी, परहेज मतलब किस बात से करना है? गुनाहों से परहेज करना। कोई भी ऐसा काम जिसको अल्लाह ने मना किया है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, उस काम से अपने आप को बचा लेना। तकवा का मतलब होता है बचना, परहेज करना, यानी वो चीज हम नहीं करेंगे जो अल्लाह उसके रसूल ने मना किया है। वमा अताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो कुछ तुम्हें दे उसे ले लो, और जिस चीज से मना कर दे उससे रुक जाओ। ये कुरान का हुक्म है। वइद्दत लिलमुत्तकीन, अल्लाह ने कहा कि जिस बारे में बयान हो रहा है जन्नत के बारे में, ये सिर्फ और सिर्फ मुत्तकियों के लिए। तो हमें तो अल्लाह ने मुसलमान बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह, हिदायत दिया, पैदाइशी तौर पर हम मुसलमान हैं, ये कमाल नहीं है। कमाल तो ये है कि हम मुत्तकी होकर मरे, है ना। दुनिया की बहुत सारी मिसालें आप फेसबुक वगैरह पे या सोशल नेटवर्किंग साइट पे देखते होंगे कि गरीब पैदा होना कमाल नहीं है, बुरा नहीं है, बल्कि गरीब मरना बुरा है। इस तरह की बातें आप सुनते होंगे, लेकिन इस तरह की बातें जरूर सुननी चाहिए कि मुसलमान पैदा होना कमाल की बात नहीं। कमाल की बात यह है कि हम अकीदा तौहीद पर हमारी मौत हो, कि अल्लाह के बारे में हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह है। तकवा की हालत में, मुत्तकी की हालत में मौत हो, और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें तू तकवा शार इंसान बना, आमीन। उसके बाद आयत नंबर 134 134, अल्लाह ने कहा अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़र्राइ, ये भी अल्लाह ताला ने बयान किया कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, खुशहाली में भी और तंगी में। सोचिए कितनी बड़ी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया कि जो खुशहाली में भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, और जर्रा मतलब कहते हैं तंगहाली में, तंगदस्ती में खर्च करते हैं। वल काज़िमीनल गैज़ा, और अपने गुस्से को पी जाते हैं। वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों को दरगुजर करते माफ कर देते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ऐसी नेककारों से मोहब्बत करता है, अल्लाह मोहब्बत करता है। यहाँ पे एक नुक्ता क्या है कि अल्लाह ने इंफाक फी सबीलिल्लाह का बयान किया। इंफाक खर्च करना, फी में सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने को इंफाक फी सबीलिल्लाह कहते हैं। इंफाक फी सबीलिल्लाह की बड़ी अहमियत है, बड़ी अहमियत है कि हम कभी भी अपने हाथ को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से ना रोकें। अब यहाँ एक सवाल जो हमारे माशरे में अक्सर रहता है, उसी का जवाब ये आयत है। बोले साहब जिसको पैसा है वो तो खर्चा करेगा, जो गरीब है। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़र्राइ, जो खुशहाली में भी खर्च करते हैं और तंगदस्ती में। तंगदस्ती किसको बोलते हैं? खाने की आफत है, बड़ा मुख्तसर कमा रहे, खर्चा ज्यादा है, आमदनी अच्छा नहीं, खर्चा रुपया, है ना।
तंदस्ती है, लेकिन उसमें भी अपने पेट को काट कर हम 1-2 पैसा 1-2 रुपया हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। अल्लाह को ये अंदाज बहुत पसंद है कि उसके पास उस कदर भी माल नहीं है कि उसको काफी हो जाए, लेकिन फिर भी खर्च कर रहा है नहीं, जरूरत से कम है, जरूरत से ज्यादा भी नहीं, जरूरत के मुताबिक भी नहीं। और अल्लाह ने यह नक्शा खींचा है कि अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्रा, जो तंगदस्ती में भी और खुशहाली में खर्च करते हैं, वल काज़िमीनल ग़ैज़ा, और जो गुस्से को पी जाते हैं। गुस्से को पी जाना भी कमाल की बात है। अल्लाह ने ऐसे भी कहा कि वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह नेकोकारों से मोहब्बत करता है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे तो सिफात हमें अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। गुस्से को पी जाना, जब आदमी को गुस्सा आता है तो आमतौर पर अक्सरियत ऐसे भाइयों की है जो गुस्सा को पर काबू नहीं पाते, बेकाबू हो जाते हैं, आपा खो देते हैं, होश में नहीं रहते। और बहुत सारे ऐसे भाई हमारे जेलों में है जो अपने गुस्से की वजह से क्या करते हैं, कंट्रोल नहीं करता है, और जब गुस्सा ठंडा हो तो एहसास हो गया तो नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कमाल है। इसके बारे में, गुस्से के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान किया कि बहादुर वो नहीं जो 4-5 लोगों को पछाड़ दे। बहादुर की तारीफ डेफिनेशन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बहादुर वो नहीं है जो 5-6 मर्दों को या पहलवानों को पछाड़ दे। बहादुर वो है जो अपने गुस्से पर काबू करे। ब्रेव मैन के बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा कि बहादुर कौन है। अब दुनिया के एतबार से हम बहादुर नहीं बोलते हैं, 10 लोगों को अकेले मारते, 20 लोगों को अकेले पटक दें, हाँ ये बहुत ब्रेव है, बहादुर है, शुजा है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं नहीं, बहादुर तो वो नहीं, असल बहादुर वो है गुस्सा उसको आए, अब बिल्कुल गुस्सा, उसका जो टेम्पर है पूरा, उसमें वो होश में है, उसमें भी वो होश में है, उसको प्रेस्टीज पर बात लगी है, उसको तकलीफ पहुंची है, लेकिन गुस्से की हालत में भी वो आपसे अदब और एहतराम से पेश आ रहा है। यकीन जाने कि दुनिया का सबसे बहादुर इंसान है। और कुरान में अल्लाह ने कहा कि जो खुशहाली और तंदुरुस्ती में खर्च करते हैं, जो अपने गुस्से को पी जाते हैं, वल आफीना अनिन नास, और जो लोगों को दरगुजर करते हैं, माफ कर देते हैं, ये भी एक क्वालिटी होनी चाहिए हमारे अंदर। आजकल रिश्ते नातों के बारे में हमारा मामला जो है बड़ा पेचीदा होता है। इस्लाम का खानदानी निज़ाम कैसा होना चाहिए, इस पर कॉन्फ्रेंस कराने की जरूरत है और मुसलसल कराने की जरूरत है। यहाँ तो होता ही नहीं। खानदानी निज़ाम कैसे ठीक किया जाए, जब तक हम छोटे रह रहे हैं तो चचा अबू में बातचीत ठीक रह रहा है, जैसी होश में आए तो वो अलग, ये अलग बात। तो अब यहाँ तक मामला पहुँच गया है कि अब मैयत का चेहरा तक आदमी नहीं देख रहा है। अपना भाई वो इंतकाल कर गया तो चेहरा देखना पसंद नहीं कर, उसको अफसोस नहीं, तो कम अज कम आखिरी मरतबा उसका दीदार हो जाए, उससे बात हो जाए, उसको देख ले, उसकी मैयत, उसकी मिट्टी जनाजे में शिरकत कर जाए, ऐसा नहीं। और बाप बेटे में ऐसे अनबन है कि बाप और माँ दोनों का इंतकाल हो गया तो बेटा कह रहा है अच्छा हुआ बुढ़िया मर गया। इतनी नफरत दिल में, इतनी आग ज्वालामुखी भड़क रही है। जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा वो मर गई तो बेटा कह रहा है अच्छा हुआ बुढ़िया मर गई। इतनी नफरत, इतनी ज्यादा नफरत। अल्लाह ने कहा वल आफीना अनिन नास, लोगों को दरगुजर करने वाले हैं। आपने हमको बहुत तकलीफ दिया है, लेकिन कुरान का इल्म है मेरे पास, बड़ी तकलीफ है, ये तकलीफ का बदला हमको अल्लाह से है, हम नहीं लेंगे, हम अल्लाह से लेंगे। वो हदीस है ना कि अगर मोमिन को कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला उसके बदले में उसके गुनाहों को माफ करता है। ये तकलीफ जो हमको दिल पे कोई दे रहा है, चाहे जो भी दे, अपने दे या पराए दे, क्योंकि हम मोमिन हैं, दिल में दर्द महसूस कर रहे हैं, तो अल्लाह उस दर्द की वजह से हमारे गुनाहों को मिटा रहा है। कितना फायदा है, कितना फायदा है इसमें कि अगर मोमिन को कांटा तक चुभ जाए तो अल्लाह उसके जरिए से उसके गुनाह को मिटा देता है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह कह रहा है कि ऐसी सिफात वाले नेकोकारों से अल्लाह मोहब्बत करता है, जिसके अंदर खर्च करने का जज्बा हो, जो खुशहाली में भी करे, जो तन्हाई में भी करे, जो अपने गुस्से को पी जाए, जो लोगों को दरगुजर कर दे, माफ कर दे, तो अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है, मोहब्बत करता है। उसके बाद आयत नंबर 135 135 अल्लाह ने कहा वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, और यहीं पर इनका मामला खत्म नहीं हुआ कि गुस्से को पी जाने वाले हैं, लोगों को माफ कर देने वाले हैं, दिन रात खर्च करने वाले हैं, खुशहाली में भी तंदुरुस्ती में भी, बल्कि अगर इनसे कोई बुराई हो जाए, इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, कोई बुराई बेहयाई के काम हो जाए, जिसको फवाहिश कहते हैं उर्दू के अंदर, फाहिश की जमात की फवाहिश, ये अरबी लफ्ज़ भी है। इज़ा फ़अलू,
जब उनसे कोई फवाहिश हो जाए, बुराई और बेहयाई के काम हो जाए, और ज़लमू अनफुसहुम, या वो कोई गुनाह कर बैठे, यहाँ ज़लम के मुराद गुनाह है, इसीलिए गुनाह को जुल्म भी कहते हैं और जुल्म को गुनाह भी कहते हैं। लुकमान इस्लाम कहा था ना, जब बोलिए ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, तो शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, जुल्म का लफ्ज़ वहाँ पर आया है, यहाँ पर भी ज़लमू का लफ्ज़ आया, और ज़लमू ये वो लोग हैं कि जब इनसे कोई बेहयाई और बुराई के काम हो जाता है, सरजद हो जाता है, और ज़लमू अनफुसहुम कोई गुनाह कर बैठते हैं, तो फौरन ज़करुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करने लगते हैं। फौरन कोई गुनाह का काम हो गया, फौरन अल्लाह का जिक्र करने बैठ जाते हैं, फस्तगफिर लिज़ुनूबिहिम, और अपने गुनाहों का इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह के गुनाहों को माफ़ कर, अल्लाह नहीं चाहता हो गया, अल्लाह जानबूझ कर ही हो गया पाप, फौरन टाइमिंग नहीं देते, टाइम नहीं देना, क्योंकि मौत भी टाइम नहीं देगा, हम मौत से खेल रहे हैं, उसको टाइम दिए हुए हैं, अभी वक्त है, बचपना है, अभी उम्र है, अभी जवानी है, अभी बुढ़ापा है, लेकिन वो तो फिक्स करके बैठा हुआ है, हम तो आपको टाइम दीजिए, आप हमको दीजिए, धोखे में रहिए, ये आपकी गलती है। फौरन क्या करते, फस्तगफिर लिज़ुनूबिहिम, फौरन इस्तिग़फ़ार करने लगते हैं, अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, उनकी जुबान से निकलने लगता है, नमाज पढ़ने लगते हैं, शुरू कर देते हैं, दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह हमसे गुनाह हो जाए, पता नहीं इसी हालत में अगर मौत हो गई तो कब्र की सख्तियां तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, फौरन इस्तिग़फ़ार में लग जाते हैं। वमन यग़फिरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, और कौन है जो अल्लाह के अलावा बख्शिश करते, कौन है? सोचे, ये एक जुमला इस्तिफ़हामिया है, सवालिया क्वेश्चन मार्क इसको बोलते हैं। अल्लाह कह रहा है कौन है अल्लाह के अलावा जो गुनाह तुम्हारे बख्श दे, यानी कहने का मकसद ये है कि काल अल्लाह व काल रसूल की सदा हमेशा हमें मतलब बोलना है, उस पर अमल पैरा होना है, क्योंकि दुनिया में कितने हमारे हमदर्द हैं। अभी अगर मान लीजिए हमको ले लें तो माँ बाप हैं, सास ससुर है, साला है रिश्तेदार में, भाई है, बहन है, ये है, कितने अपने हैं, कब्र में छोड़ कर चल दी, सब अपने उतारे और वहां से निकलना शुरू, फौरन फिर दुआ नहीं हुआ, अच्छा दुआ में टाइम है, अभी कितनी देर दुआ, बारिश हो रही है, दूर निकलो पहले यहाँ से। वो कौन लोग हैं जो दुनिया में हमसे चिपक कर रहते, एक मिनट के लिए हमसे दूरी पसंद नहीं करते, चिपक के रहते थे। वमन यग़फिरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, कौन है अल्लाह के अलावा जो बख्श दे, कोई है दुनिया के अंदर जो अल्लाह के अलावा बख्श दे? अल्लाह के अलावा, इसमें नबी का भी इनकार हो रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं बख्श सकते हमें। आप सोच लीजिए कितनी भारी भरकम जुमला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तेमाल किया कि अगर मोहम्मद भी चाहे अपने उम्मतियों को बख्शने के लिए तो नहीं बख्श सकते। ये जुमला देखिए कितना बेहतरीन, वमन यग़फिरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, कौन है जो अल्लाह के अलावा तुम्हारी बख्शिश कर दे। और यही वजह है कि जब मर्जुल मौत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्जुल मौत में थे तो उनकी बेटी फातिमा आई थी, जिससे खबर मिलती गई कि हाँ आपका हुजूर जो है कमज़ोर होते चले गए, हुआ ना कि इशा की नमाज का वक्त था तो आपने पानी मंगाया वजू के लिए कि आयशा पानी लाओ, जाके नमाज पढ़ा दी मस्जिद नबवी में, पानी लाया गया, आपने वजू किया और बेहोश हो, उठ ही नहीं पाए, इतने कमज़ोर हो गए थे। फिर कुछ इफाका हुआ, होश आया, फिर आपने पानी मंगवाया, वजू की 3 मरतबा किया, आप बेहोश हो, फिर आपको यकीन हो गया कि मैं नमाज नहीं पढ़ा पाऊंगा। उन्होंने कहा कि अबू बकर को बुलाओ। आयशा सिद्दीक़ा ने कहा कि अल्लाह के नबी, मेरे अब्बा को छोड़ दें, किसी और को बुलवा लीजिए, मेरे अब्बा बहुत नरम दिल हैं, वो आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, उनको जब पता चलेगा कि मुझे हुक्म होने वाला है कि अय अबू बकर आज तुम मुसलमानों की इमामत कराओ, तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि नबी की इब्तिदा में हम नमाज पढ़ने वाले आज नबी के बगैर कैसे नमाज पढ़ेंगे, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। आयशा कहती रही कि अल्लाह के नबी रसूल आप उमर फारूक को बुलवा लीजिए, उस्मान गनी को बुलवा लीजिए, दूसरे सहाबा को, लेकिन मेरे अब्बा को छोड़ दीजिए। लेकिन अल्लाह रसूल ने कहा जाओ मेरा हुक्म बुला के लाओ, बुलाया गया तो भेजा गया। आई तो फातिमा आई, यहाँ अब्बा की तबीयत ज़्यादा खराब है, बेटी की मोहब्बत है तो बड़ी रो रही है फातिमा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरी बेटी जो मांगना है आज मांग लो, क़यामत के दिन मैं तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। तो कौन कह रहा है? नबी अपनी बेटी से कह रहा है। एक नबी के दिल में उसकी उम्मती से पहले उसकी औलाद है कि नहीं, जो उससे पैदा हुई। फातिमा तुमको अभी कुछ हमसे लेना है तो मांग लो, अब्बा मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं मिला, मुझे वो चाहिए, कल कयामत के दिन मैं तुम्हारे किसी भी नफा नुकसान का मालिक नहीं हूँ। ये कुरान का हुक्म देखे कैसे कुरान को तोड़ मरोड़ के और मुसलमानों को गफलत में डाला जाता है। अल्लाह कह रहा है मैं यग़फिरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, कौन है अल्लाह के अलावा जो तुम्हारी बख्शिश कर दे। वलम
युसिर्रु अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, ये वो लोग हैं कि जब जान इल्म रहते हुए भी अगर कोई गुनाह कर जाते हैं तो उसमें अड़ते नहीं, मतलब हम लोग कहते हैं अपनी पर ठिठियाते नहीं। बहुत से लोग गुनाह करके ढीठ बन जाते ना, ऐसा नहीं, कैसे बोल दिया, कभी नहीं करेगा, हम मन में नहीं करेंगे, यानी बिल्कुल उसमें अड़ जाना। अल्लाह ने कहा कि वो लोग कौन से है, जब इल्म हो जाता है तो अपने करतूत बात किए हुए अमल पर वो ठिठियाते नहीं, अड़ नहीं जाते, बल्कि जब सही बात आती है तो उसको मान लेते हैं और अपनी खामी को जाहिर कर देते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई, हमसे गलती हुई। उसके बाद आयत नंबर 136 136 में अल्लाह ने कहा उलाइका जज़ाओहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जिनका बदला उनके रब की तरफ से मग़फ़िरत। हमें अल्लाह से क्या चाहिए कि हम मर के जाएं, दुनिया में जो हम नमाज पढ़ रहे हैं, अभी दर्स में बैठे हुए हैं, कुरान सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगे तबलीग भी करना चाहते हैं, क्यों, वजह क्या है, क्यों ये करना चाहते हैं, ताकि जब हमारी रूह निकले तो अल्लाह हमें बख्श, कब्र में हमें आराम मिले, सख्तियां ना हो, अजाब ना हो, है कि नहीं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला कब्र के पास से गुजरते थे, अल्लाहू अकबर, अशरा मुबशरा है उस्मान गनी, यानी 10 सहाबा इकराम जिनको जन्नत की खुशखबरी मिली दुनिया के अंदर, उसमें से उस्मान गनी भी है। यानी उस्मान अब इंतकाल करेंगे जन्नत में चले गए, मरने से पहले जन्नत की खुशखबरी। और उस्मान गनी कौन थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, दो बेटी उनका निकाह हुआ, रुकैया से भी, उम्म कुलसूम से भी। लेकिन जब कब्र के पास से गुजरते थे तो अपनी सवारी को उतार कर वहीं पर रोने लगे, बहुत हो गई, इतना रोते कि दाढ़ी भीग जाती है आंसुओं से, ऐसा लगता है कि बारिश हुई है और बारिश के पानी ने सर के बाल को और चेहरे की दाढ़ी को भिगा दिया। साहबा कहते हैं कि उस्मान गनी आपके पास जन्नत जहन्नम का जिक्र होता है, आप उतना नहीं रोते, इतना इस कब्र के पास क्यों होते हैं। वो कहते थे कि देखो आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल कब्र है, ये मंजिल अगर आसान हो गई तो सारी लाइफ क्लियर, यहाँ अगर हरा सिग्नल हो गया तो आपको थ्रू ले जाना जन्नत में, कहीं नहीं रोटी निकाल दिया, और यही मामला गड़बड़ हो गया तो आगे के मामला भी बहुत गड़बड़ है। तो उस मामले को ठीक करने के लिए दुनिया में हमें नेक अमल करना, मजाक नहीं है दीन इस्लाम, इतना आसान हम समझे हुए हैं। यही वो लोग हैं जिनका बदला उनके रब की तरफ से मग़फ़िरत है। बताइए कितनी खुशी की बात है, कौन लोग होंगे, अल्लाह हम सबको इन लोगों में शामिल करें कि अल्लाह की तरफ से हमें मग़फ़िरत मिल जाए, आमीन, मग़फ़िरत मिले। और जन्नात, और इनके लिए ऐसे बागात है तजरी मिन तहतिहा अनहार, जिसके नीचे नहरें जारी होंगी, खालिदीन फीहा, उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, व निअमा अजरुल आमिलीन, और उनकी नेकियों का क्या ही बेहतरीन अजर, उनकी नेकियों का क्या ही बेहतरीन अजर है। उसके बाद अल्लाह ताला ने आयत नंबर 137 137 में कहा कद खलत मिन क़ब्लिकुम सुनन, इस तरह के वाक़यात तुमसे पहले भी गुजर चुके हैं। असल में हुआ क्या था, वहां में मुसलमानों को शिकस्त हो गई, वो पहाड़ पे अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की क़यादत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब करीब 40 तीरंदाजों को मुकर्रर किया था और ये हुक्म दिया था कि जब तक मेरा हुक्म सानी ना आए कोई अपनी पोजीशन से हटेगा नहीं। लेकिन यहाँ खालिद बिन वलीद थे काफिरों की तरफ से, तो देखिए कि हम जब हार जाएंगे तो हिकमत लगाई कि ऐसे बैठ को इस लगे कि हम दूर दबा के भाग रहे हैं, हालांकि हम भाग नहीं रहे हैं, मुसलमानों को गुमराह करना है कि हम भाग रहे हैं। अब उसके बाद माले गनीमत, यानी काफिरों से जो माल हासिल होता है उसको माले गनीमत कहते हैं। माले गनीमत उठाया जा रहा था तो जो तीरंदाज मुकर्रर किए गए थे उनको लगा कि हम जीत चुके हैं। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने कहा कि नहीं, जब तक अल्लाह के रसूल का हुक्म नहीं आता यहाँ से कोई नहीं हटेगा। लेकिन दो राय यहाँ पर हो गई। बाद साहबा ने कहा अब्दुल्ला देखो सारे सहाबा माले गनीमत समेट रहे हैं, कोई दुश्मन नजर भी नहीं आ रहा, क्या क्या करेंगे यहाँ पर रह के हम। उन्होंने कहा जो भी हो जब तक रसूल का हुक्म नहीं आता नहीं जाए। लेकिन नहीं हुई बात, बहुत सारे साहबा वहां से निकल गए और सब मारे गए, हमला हो गया पीछे से, समझे ना। तो उस पर जो है मुसलमान बहुत अफसुर्दा हो गए कि बदर में जीत हुई, ओहद में टाई हो गया, हार नहीं मिली, ड्रॉ हो गया ओहद में, बड़ी गंभीर थी। तो अल्लाह ने उनको तसल्ली दी, कहा खलत मिन क़ब्ल इस तरह के वाक़यात गुजर चुके हैं, उनसे पहले भी इस तरह के बहुत से वाक़यात गुजरे हैं, इस तरह की जंगें हुई है, हार जीत जो है एक जंग का हिस्सा होता है। फसीरु फिल अर्ज़ फंजुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, तुम जमीन को देखो, चलो फिरो, भूल जाओ जो चीज गुजर गई उसको भूल जाओ, सामने देखो क्या है, सामने फोकस करो क्या आने वाला है, उस चीज को भूल जाओ तुम। फसीरु फिल अर्ज़, जमीन में चलो, गौर फिक्र करो। फंजुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, देखो तो झुटलाने वालों का अंजाम कैसा होता है। ये जो तुम पर हमला किए खुश हो रहे हैं,
ये सब मुकज़्ज़बीन हैं, झुटलाने वाले हैं। किस मतलब होता है झूठा, कज़्ज़ाब के सबसे बड़े झूठे। तो ये सब मुकज़्ज़बीन हैं। इनका अंजाम क्या हुआ पीछे पढ़ो कि मूसा अलैहिस्सलाम के को झुटलाने का अंजाम क्या हुआ फिरौनियों को। ईसा अलैहिस्सलाम की झुटलाने वालों को क्या अंजाम हुआ, नूह अलैहिस्सलाम की झुटलाने वालों को क्या अंजाम, पढ़ो पीछे। अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाअल्लाह दोबारा दर्स को शुरू किया जाएगा। अजान हो रही है। उसके बाद अल्लाह ताला ने आयत नंबर 138 138 में कहा हाज़ा बयानुल लिन्नासी व हुदन व मौइज़तुल लिल मुत्तकीन। ये आम लोगों के लिए सिर्फ बयान है यानी कुरान, और हिदायत और नसीहत है मुत्तकियों के लिए। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुत्तकी, और यहाँ पे दो कैटेगरी बयान की। अल्लाह ने कहा हाज़ा बयानुल लिन्नास, जो आम लोग हैं जिनको कुरान से उतना मतलब नहीं और उनका ताल्लुक भी कुरान से रखना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते, उनके लिए एक आम स्टेटमेंट है, आम बयान है। क्या वो बयान हो रहा है, बयान तो कुरान का बयान है। वह हुदा व मौइज़तुल लिल मुत्तकीन, जबकि हिदायत और नसीहत मुत्तकियों की, यानी जो तकवा वाले हैं, कुरान की बात सुनते हैं, चाहे मोबाइल में हो, चाहे दर्स में हो, चाहे कहीं भी रहते हैं, तो उनके दिल के परिचय खुल जाते हैं और बैठ जाते हैं वहाँ पे सुनने के लिए। ये तो बहुत बड़ी चीज़ चल रही है, ये तो आम बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह ने कहा हाज़ा बयानुल लिन्नास व हुदन व मौइज़तुल लिल मुत्तकीन। उसके बाद आयत नंबर 139 में अल्लाह ने कहा वला तहिनु वला तहज़नु, और सुस्ती ना करो, वला तहज़नु, और गम ना करो, व अंतुम अलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। देखिए ये आयत बहुत बहुत दर्स देती है हमें, और आपको बहुत सिखाने वाली आयत है, सीखने वाली आयत है कि हमें बुलंदी क्यों नहीं मिलती, बुलंदी क्यों नहीं मिल रहा है। आज कोई भी कौम मुसलमानों को कुचल दे रहा है, मार दे रहा है, कुछ भी कर दे रहा है, और ये कि हमारी ऊपर मदद नहीं आ रही अल्लाह की, तो क्यों ना कम करें। वो तो दिलासा है जंग ओहद के ताल्लुक से, अल्लाह ने कहा सुस्ती ना करो, वला तहिनु, सुस्ती ना करो, वला तहज़नु, गम ना करो, व अंतुम अलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन रहे। अल्लाह ने ये शर्त लगा दी, तीन शर्तिया है। अरबी ग्रामर के अंदर यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इन कुंतुम की शर्तिया है, शर्त अल्लाह ने लगा दिया कि अगर चाहते हो कि बुलंदी मिले तो मोमिन होना पड़ेगा, मोमिन बनना पड़ेगा। मोमिन वो नहीं है कि जो अल्लाह के बाद हुक्म को माने, बाद हुक्म को ना माने, बल्कि मोमिन वो है कि ए टू जेड पर अमल करने की कोशिश करे। अमल की कोशिश से कुछ छूट जाए तो अलग बात है, अमल की कोशिश में अगर कुछ छूट जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर कुछ कम छोड़ देते हैं। आज अगर हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात की जाए कि खस्ता हाली क्यों है, हर मामला में हम पीछे क्यों हैं, हम गिर क्यों रहे हैं, हम झुक क्यों रहे हैं, हम कुचले क्यों जा रहे हैं, दबे क्यों जा रहे हैं, इसकी वजह है कि हम मोमिन हैं। अल्लाह मोमिन पर अजाब नहीं करता, मोमिन नहीं है, इसीलिए बुलंदी हमें नहीं मिल रहा। तो बुलंदी चाहते हैं तो हमें ईमान लाना होगा, हमें मोमिन बनना होगा। आज का दर्स यही पे खत्म किया जाता है। अगर इसके ताल्लुक से कोई सवाल हो ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे आपने बताया कि नबी सल्लम को भी मतलब ये नहीं मिले कि मतलब जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब अड़े हुए चीज पे कि नबी सल्लम की बात कर रहे हैं, इस बारे में कहते हैं कि उनका ये अकीदा बन जाए कि वो सिफात करेंगे अगर हम फंस भी गए तो इसमें तौहीद के एक तरीके से इनकार हो गया कि सिफात तो तभी करेंगे जब अल्लाह का हुक्म हो। देखिए सवाल ये कि भी जो आयत गुजरी कि अल्लाह के अलावा कौन है जो बख्शिश कर दे, ये बात उसमें ऐड किया गया कि बख्शिश सिर्फ अल्लाह करने वाला मग़फ़िरत। अस्तग़फिरुल्लाह क्यों कहते हैं, अल्लाह तू माफ़ कर दे। अस्तग़फिरुल्लाह का उर्दू लफ्ज़ होता है ए अल्लाह तू माफ़ कर दे। अस्तग़फिरुन नबी कहते हैं, ए नबी तू माफ़ कर दे, कहते हैं नहीं कहते, क्योंकि ये सही नहीं है। मग़फ़िरत इस्तिग़फ़ार अल्लाह के रसूल भी करते थे। अस्तग़फिरुल्लाह जो उन्हीं का सिखाया हुआ है, जो हम लोग पढ़ते हैं अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। तो सवाल ये है कि बहुत से हमारे माशरे में हमारे भाई हैं तो ये ज़हन में या उनकी ज़हनियत ऐसी है कि हमें नबी जो है, हम नबी के सदक़े में या नबी हमारी शफ़ाअत कर देंगे और हम पार घाट यानी जहन्नम के अज़ाब से बच जाएंगे और जन्नत के मुस्तहिक़ होंगे। ये सवाल है। देखिए ये बात तो बिल्कुल शीशे की तरह, आईने की तरह बिल्कुल वाज़ेह है।
इसमें कोई पेचीदगी नहीं। मैंने अभी 10 में भी कहा कि हम लोगों को गुमराह किया जाता है, कुरान के अल्फाज को तोड़ मरोड़ में पेश किया जाता है। और वो हदीस भी मैंने सुना है कि अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी से कहा, किसी और से नहीं कहा, अपनी लगते जिगर से कहा कि फातिमा जो चाहिए अभी ले लो, मैं भी जिंदा हूँ, कल कयामत के दिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं फायदा या नुकसान दे सकता, वो मेरे अंडर में है ही नहीं, कैपेसिटी में है ही नहीं, अल्लाह ने मुझे वो इख्तियार दिया ही नहीं है। जो नबी अपनी बेटी को ये बात कह रहा है तो हम तो बहुत दूर है ना, उनकी औलाद में से नहीं है हम, है कि नहीं, उम्मती है, अपनी औलाद के बाद ही कोई उम्मत आती है। तो फिर ये कहना या जो लोग इस तरह की बात कहते हैं कि हम नबी के सदके में चले जाएंगे, तब तो कोई भी नमाज नहीं पढ़ेगा। हम तो सबसे पहले नमाज छोड़ देंगे, नबी के सदके ही चक्कर में रहेंगे। सच बता रसूल ही के सदके में या उनके दामन पकड़ के या जो भी उनकी शिफात होगी, बात हो जाएंगे। एक हदीस है कि हर नबी की एक दुआ होती है, सही हदीस बुखारी के रिवायत है, हर नबी की एक दुआ होती है। अल्लाह ने एक स्पेशल दुआ सब नबी को दिया, आदम से लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब नबी ने अपनी दुआ दुनिया में मांगी, सब नबी ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मांगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुझे जो इख्तियार मिला है मैं उसको कल हश्र के मैदान में मांगूंगा। तो इससे हम लोग उम्मीद लगाए बैठते हैं कि कल हश्र के मैदान में अल्लाह के रसूल यही कहेंगे कि अल्लाह मेरी उम्मती को बख्श, है ना। ये हम एक एम लगाए हुए हैं, यही दुआ अल्लाह के रसूल करेंगे। और गलत सोच भी नहीं है, अल्लाह के रसूल क्या चाहेगा अपनी उम्मती के लिए, जो नबी अपनी जिंदगी में उम्मती के लिए रो रहा था तहज्जुद में, जाहिर सी बात है वो नबी का हश्र में हमारी शिफात के लिए कहेगा। शिफात का डेफिनेशन क्या है? शिफात का मतलब ये है कि नबी जिसको चाहेंगे शिफात कर देंगे, अल्लाह जिसके बारे में नबी को बोलेगा नबी उसके बारे में शिफात करेंगे, समझ गए ना। अल्लाह जिनके बारे में कहेगा, जैसे मान लीजिए हम सब मैदान महशर में इसी तरीके से बैठे रहेंगे, अब एक आदमी ये आए का हिसाब चल रहा है, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, अल्लाह को पता है क्या नहीं किया क्या नहीं है, अल्लाह सब जानता है, लेकिन फिर भी इंसाफ के तकाजे को पूरा करने के लिए पूछेगा। अल्लाह को सब पता है कि मेरा बंदा नेकोकार में से था कि बदकार में से था। अब अल्लाह के दिल में है कि इसको जन्नत में ले जाएगा, तो अल्लाह कहेगा कि मोहम्मद आप इनके बारे में क्या है, समझ गए। अब एक दूसरा आदमी आया, अल्लाह ने देखा करी तो गुनाह की ज्यादा है, कर्ज वगैरह भी बहुत है, धोखा फ्रॉड भी बहुत किया हुआ है, तो अल्लाह सीधा जहन्नम में डालेगा, बोल भी नहीं करेगा अल्लाह का कि नबी अब क्या बोलना चाहते हैं इनके बारे में। अब जिसको अल्लाह डाल देगा जहन्नम में, तो अल्लाह के रसूल की मजाल है कि अल्लाह से कहेगा अल्लाह को निकाल दे। सोचने वाली बात है, ये अकीदे का टॉपिक है, इस पर पढ़ेंगे, बड़ा मजा आता है पढ़ने में। तो शिफात में हम लोगों ने ये सोच रखा है कि अल्लाह के रसूल की दुआ बाकी है और हम दुनिया में कुछ भी कर लें, जैसे अपनी जिंदगी गुजार लें, मुसलमान है यही काफी। गलत सोच है। ऊपर में वो आयत सुनी ना, उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है। अल्लाह को उइद्दत लिल मुस्लिमीन लिखने में क्या क्या दुश्वारी है, सोचिए आप। अल्लाह नहीं लिख सकता था, कुरान अल्लाह ने लिखा है ना, अल्लाह कलाम है, तो उइद्दत लिल मुस्लिमीन अल्लाह ने क्यों लिखा? सब तो मुसलमान है, मुसलमान को अल्लाह पसंद करता है और चाहता है सब जन्नत में जाए। अल्लाह ने कहा कि नहीं, मुसलमान होना काफी नहीं, मुसलमान होना बिल्कुल उसी तरीके से कि ग्राउंड पे मैच होने वाला है, दोनों टीम ग्राउंड पे उतर जाए, कप लेके चले, काफी नहीं है, खेलना ग्राउंड पे तो उतर गए, अब मैच लड़ना होगा, जो खेल के जीतेगा कप ले जाएगा। अब दोनों के लिए उतर गए, बहुत है, हमको कप चाहिए, हमको नहीं, ऐसा होगा दुनिया में नहीं चलेगा तो वहां कैसे चलेगा। तो शिफात भी अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल को हुक्म देगा। मैंने मिसाल देकर बता दिया नबी क्या कह रहे हैं इनके बारे में, बोलिए। और इसमें भी क्या गारंटी है कि नबी इसके लिए शिफात कर ही देंगे? जिसके पास तौहीद नहीं है, जो शिर्क लेकर दुनिया से फौत हुआ, उसकी भी क्या गारंटी है कि नहीं। वो हदीस याद है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के रसूल उस शख्स को देखना पसंद नहीं करते जो उनके बाद यानी वफात के बाद तरह तरह की बिदअत की इजाद करता हो, उसको पसंद तक नहीं करेगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस सारी चीजों का निचोड़ ये है कि हम अपने तौर पर काम करते हैं। जैसे हम लोग माध्यमिक के इम्तिहान देते हैं, ये सोच कर ना बैठ जाए कि उर्दू का पेपर त्रुटि में आता है वो सेटिंग कर लेंगे, आप बंगला का पेपर अक्सर में जाएगा वहां सेटिंग हो जाएगी। नहीं, हम पास होने के लिए से मेहनत करें। हम ये सोच कर जब मेहनत करेंगे तो पास हो ही जाते हैं, हो ही जाते हैं। हमें यही सोच कर मेहनत करना है कि नहीं, हमें कोई काम छोड़ना नहीं है, अपना काम करना है। जब हम लगे रहेंगे तो अल्लाह मामला को आसान कर देगा। और यकीन जाने कि अगर हम अकीदे तौहीद पर मरे, ये बात याद रखें, क्योंकि अपनी बात आ गई तो बता दें,
کہ अल्लाह के साथ किसी को मैं शरीक नहीं ठहराया। नमाजों में अगर कमी हो जाए, रोजे में कमी यानी इबादत में कमी हो जाए, तो हो सकता है कि अल्लाह का मामला है बंदे के और अल्लाह के दरमियान, तो अल्लाह माफ करे। किस वजह से? कि मेरा बंदा जैसा भी था कि मुझे एक माना, हो सकता है अल्लाह माफ कर दे। लेकिन अगर बंदों के दरमियान मामला है कि गड़बड़ है, समझ गए? अल्लाह माफ करने वाला गफूर रहीम है, माफ कर दे। लेकिन बंदे का मामला गड़बड़ है, किसी से पीछे लेके हम मरेंगे, किसी को धोखा देकर मरे, किसी की जमीन हड़प कर मरे, जब तक वो माफ नहीं करेगा तब तक नहीं। इसीलिए लोगों से अपने ताल्लुकात अच्छा रखें, खासकर लेन देन कोशिश करें किसी से लेवे ना करें। लेना भी गुनाह नहीं है, दे तो देने की पूरी कोशिश करें। ना दे सके तो मरने से पहले अपने घर वालों को वसीयत करके मरे। एक डायरी आप लोग बनाए, किसकी कब उम्र निकल जाए कोई नहीं जानता कि हम इससे इतना रुपया लिए वो फला तारीख को। उसमें कुछ नोट्स लिखे कि अगर मेरी मौत किसी तरह से एक्सीडेंटल है, जैसे भी अचानक हो जाती है, तो उसको बुलाकर लोग माफ करवा देना। कब्र की शक्ति बड़ी खतरनाक। सवाल था उसमें औरतों का आपका एक औरतों का कितना करके मतलब औरतों को कितना है उससे कैसे उसका एक उसको थोड़ा सा एलिब्रेट करके औरतों का कितना। देखिए सवाल ये कि औरतों के फितने से मतलब क्या है, मुराद क्या है? इसका ये माना हरगिज नहीं कि औरत फितना है, समझे ना? इसका माना हरगिज नहीं है कि औरत फितना है। बनी इसराइल वो कौम थी जो हमसे पहले कौम थी, जो अल्लाह के सबसे करीब और महबूब तरीन कौम थी। इस कौम का जवाल आने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये औरत के फितने में मुब्तला हो। अब जैसे मोबाइल के फितने से बचो, इस मतलब मोबाइल कितना है, अगर कितना है तो फिर इस पर हराम का फतवा लग जाएगा। समझ में आ रही है? हम लोग है ना बच्चों को कहते हैं मोबाइल रखिए, स्कूल टीचर भी कहते हैं बच्चे को दूर रखिए मोबाइल से, हर कोई कहता है मोबाइल से दूर रखिए, क्योंकि ये फितना है। सरापा फितना नहीं है, इसके अंदर फितना। अगर आप इसको अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए बाइस रहमत है। हदीस डाउनलोड कर लीजिए, कुरान डाउनलोड कर लीजिए, नमाज का तरीका सीखें, दीनी प्रोग्राम सुनिए, अच्छी चीजें देखिए, कोई गलत नहीं है। ये गलत किस सूरत में हो जाएगा? जब इसको हम गलत यूज करेंगे तब ये चीज फितना हो जाएगी। औरत बताते खुद फितना नहीं है, बात समझ आ रही है? फितना किस सूरत में हो जाएगी? जब उसको हम गलत तरीके से उसके साथ हम संबंध बनाएंगे, ऐसी सूरत में फितना है ना, ऐसी सूरत में फितना हो जाए। मसलन अल्लाह ताला ने जो हदीस के अंदर बयान किया कि एक मर्द को 4 शादी की इजाजत दी गई ना, एक मर्द जो है बैक वक्त ज्यादा से ज्यादा 4 बीवी रख सकता है। लेकिन कुरान का जो हुक्म है कि अगर तुम इंसाफ ना कर सको, अगर तुम्हें डर हो कि तुम चारों में इंसाफ नहीं कर सको तो एक ही रहो। कितना अच्छा कानून है अल्लाह ताला का कि अगर एक से ज्यादा बीवी 2 बीवी रख रहे हैं तो इंसाफ करना है। इंसाफ का मतलब कि अगर उसको हम 1 रुपया का कपड़ा पहना रहे तो उसको भी 1 ही रुपया का पहना है, 12 आना कहीं पहना। जो उसको दे रहे वो इसको दे रहे हैं। अगर हम इंसाफ नहीं करेंगे तो अल्लाह पकड़ेगा। लेकिन साइंस इस पर जब सर्वे करता है तो बतलाता है कि मर्द के अंदर अल्लाह ने इतनी कुव्वत पैदा की है कि वो 4 बीवी रख सकते हैं। सिर्फ हुक्म नहीं कर दिया अल्लाह ने, ये मर्द के अंदर ये उतनी ताकत है कि वो 4 बीवी रख सकता है। बात समझ आ रही ना? तभी जाकर अल्लाह ताला ने ये हुक्म मर्दों को दिया है। अब हम क्या करें? एक बीवी है और बाहर में चक्कर चलते रहे, अब शादी क्यों नहीं करते? आपको इतनी पसंद है, बनना इजाजत दिया है ना आपको इजाजत दिया है, आपको अल्लाह ने रोका नहीं है। ये भी गलत है कि बीवी से इजाजत लेनी है, नहीं, बीवी को इंफॉर्मेशन देना, बीवी को जानकारी देनी है कि हम दूसरा निकाह करना चाहते हैं। हम चूंकि एक जो समाज में रहते हैं वो समाज हिंदुआना समाज, तो हमारे यहाँ ऐसा कि ये गलत है। और खुद अपनी ही कौम की जो बूढ़ी औरतें वसूल लेती है, दूसरा शादी किया है तो न जाने कौन कौन अल्फाज से उसको बोलती है ऐसा है वैसा है, उनको दिन नहीं पता। तो फितना कब हो गया? फितना उस वक्त हुआ कि आप गलत संबंध उसको इस्तेमाल करें, आप उसको जायज तरीके से इस्तेमाल करो, फितना नहीं होती बीवी तब फिर रहमत। ये है औरत का फितना। समझ रही? ऐसे इस्तेकामत के बारे में, दीन में इस्तेकामत के बारे में क्या अभी ये चीज बहुत ज्यादा सवाल ये कि इस्तेकामत किसको कहते हैं? इस्तेकामत देखिए बहुत बड़ी चीज़ है। इस्तेकामत एक ऐसी चीज़ है कि कभी इस पर बहस किया जाए, बहुत तफसील से बात की जाएगी, क्योंकि वक्त कभी मुख्तर बयान करें।
कुरान में अल्लाह ने एक जगह कहा कि इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और उस पर कायम रहे, बेशक हमारा रब अल्लाह है उस पर कायम रहे। देखिए हम लोग खुश नसीब हैं कि हम लोगों को वो आजमाइशें नहीं मिली जो सहाबा को मिली। सहाबा के ऊपर क्या था, जो उस वक्त के हालात थे कि धूप जो चीज जाती धूप में एक हवा का सहारा था और दूसरा कुछ नहीं था। हमारे लिए एसी वाला सब, हमारे पंखा है, कूलर है, एसी है, कितनी सहूलियात अल्लाह ने दे रखा है, उनके यहाँ नहीं था वो चीजें। इस्तिकामत कहते हैं कि जमना, जैसे बर्फ जम जाता है, पानी को आप डीप फ्रिज में रखेंगे तो जम के क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है, आइस जिसको बोलते हैं। ईमान वही है, इस्लाम उसी चीज को कहते हैं कि जितनी भी बड़ी आपके ऊपर आजमाइश और मुश्किलात आ जाए, आप अपने दीन से नहीं हट सकते। कायम रहना है मतलब कायम रहना है। कोई आदमी आपके गर्दन पर तलवार रखे तो कहो अल्लाह के बारे में बुरा भला, कहो कि मैं आपको नहीं मानता, मैं इसको मानता हूँ, आप गर्दन कटवा ले, लेकिन आप आपको जुबान क्यों नहीं करें, उसको इस्तिकामत कहते हैं। है तो बिलाल के ऊपर पत्थर रख दिया गया, बिलाल हबशी के ऊपर तपती रेगिस्तान पे खुले बदन लिटाकर बड़ा सा पत्थर रख दिया गया ताकि उसका बॉडी हिले नहीं, हरकत ना करे, और कहा गया कि बिलाल कहो कि मैं अपने रब के दिन से, मोहम्मद के दिन से फिरता हूँ, लेकिन वो एक ही बात कहते थे, अहद अहद अहद, एक अल्लाह एक अल्लाह एक अल्लाह। ये इस्तिकामत है। चाहते तो उनकी बात मानते तो सजा कम हो जाए, आसान हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे ये सजा मंजूर है लेकिन जहन्नम की सजा मंजूर है। इस्तिकामत ये है कि हर हाल में दीन पर कायम रहना। हम लोग इस्तिकामत में नहीं रहते, हम लोग अंदर इस्तिकामत की कमी है। जैसे रमजान के बाद नमाज चलता है, ईद या बकरीद तक ठीक है चलता है, उसके बाद क्या हो जाता है, इस्तिकामत में जमना होता है ना, तो ठीक चल रहा है, उसके बाद जमना खत्म, पिघलना शुरू हो जाते हैं, फिर एक दिन, एक महीना गैप, 2 महीना पर, 3 महीना गैप, 4 महीना पर फिर अगला है, तो इसको इस्तिकामत नहीं है। इस्तिकामत हर चीज में, नमाज में, रोजा में, हज में, ज़कात में, हर चीज में इस्तिकामत होनी चाहिए। जम जाना है, जम कर पत्थर बन जाना है, लेकिन इसको छेनी हथौड़ी से नहीं, उसको तोड़ने के लिए बुलडोजर लाना है, समझ गए ना। इस्तिकामत उसी चीज का नाम है, अल्लाह के दीन पर जमे रहना। दर्स के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला तो हम तमाम लोगों के हाथी को कबूल फरमा ले। हमें जो बीमार है उन्हें शिफाए आजिला व कामिला अता फरमा, और हमें जो परेशान आ गए परवरदिगार आलम उनकी परेशानी को आसानी बदल दे। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दर्स